संयम्य युक्त आसीत मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त असित मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसित मत्परः यशेहि 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 यस्येन्द्रियाणि स्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि ता those senses those senses सर्वाणि सर्वाणि all all संयम्य संयम्य keeping under control keeping under control युक्तः युक्तः engaged engaged आसित आसित situated should be situated मत्परः मत्परः in relationship with me in relationship with me वशे वशे in full subjugation in full subjugation he certainly certainly yasya yasya one whose one whose indriyani indriyani senses senses tasya tasya his pragya pragya consciousness consciousness pratishtita pratishtita fixed fixed translation by Srila Prabhupada Shri Prabhupada ki jai. one who restrains his senses One who restrains his senses keeping them under full control keeping them under full control and fixes his consciousness and fixes his consciousness upon me upon me is known as is known as a man of steady intelligence. a man of steady intelligence. पपट बाय Srila Prabhupada की Jai. कौन पढ़ेगा पपट Mataji, can I read? हाँ That the highest conception of yoga, perfection in Krishna consciousness, is clearly explained in this verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a squirrel with Maharaja Ambarishi, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sages' injustices and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications as mentioned in the Srimad Bhagavatam 9.4.18 to 20. King Ambarishi fixed his mind on the lotus feet of Lord
engage his word in describing the abode of the Lord. His hand is cleansing the temple of the Lord. His ears in hearing the pastimes of the Lord. His eyes is in seeing the form of the Lord. His body is touching the body of the devotee. His nostrils is smelling of the flavor of the flower offered to the lotus feet of the Lord. His tongue is tasting the tulsi leaves offered to him. His legs is traveling to the holy place where his temple is situated. His head is offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications made him fit to become a Matpara devotee of the Lord. The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaja Ambarishi. Srila Baladeva Vidyabhushana, a great scholar and acharya in the line of the Matpara, remarks, Madbhakti प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजया पूर्विकः स्वमतः दृष्टिया सुलभित भवः. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. Also, the example of fire is sometimes given as a blazing fire burns everything within a room. Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burns up all kinds of impurities. The Yoga Sutra also prescribes meditation on Vishnu and not meditation on the void. The so called yogis who meditate on something other than Vishnu simply waste their time in a vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna conscious, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of real yoga. Jai Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Very nice. Very nice. देखते हैं अभी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखे. Yes, Mata. डिस्कस. सो तानी सर्वाणी संयम्य, पहली लाइन है, दो सेंसेस ऑल कीपिंग अंडर कंट्रोल. तो कृष्णा अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जो लोग भी अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं. संयम्य, संयम मतलब क्या? कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना. कहते हैं ना बड़े लोग हमें, जब भी हम कभी जा रहे होते हैं कहते हैं ना संयम रखना, संयम रखना, संयम रखो. बड़े लोग, आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो एग्जाम के लिए तो सब कहेंगे संयम रखो, क्योंकि एग्जाम में भी आपको संयम रखना पड़ता है. आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो तो संयम रखना पड़ता है. तो कहीं पे भी आपका, अगर नई नई कार सीख रहे हो तो बड़े लोग कहेंगे आपको संयम रखो. अगर आप बाहर की कंट्री में जा रहे हो तो कहेंगे संयम रखो. क्यों? क्योंकि आप कुछ भी खा लोगे, ज्यादा खा लोगे, अपचन हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे. कभी कभी आप ज्यादा सोओगे तो संयम नहीं रहता, सोने पे भी संयम नहीं रहता, खाने पे भी संयम नहीं रहता. कभी कभी जागते रहते हो रात रात भर, उसमें संयम नहीं रहता. तो बड़े लोग इसलिए हमें कहते हैं संयम रखो. तो ये शब्द जो है ये कृष्णा ने अर्जुन को भी बोला कि हे अर्जुन, जो लोग संयम रखते हैं, सर्वाणी संयम्य, सर्वाणी मतलब ऑल सेंसेस, कीपिंग अंडर कंट्रोल, अपने सारे कंट्रोल सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखते हैं, फिर युक्त कर देते हैं. युक्त मतलब क्या? यूज करते हैं, एंगेज, बिजी करके रखते हैं. युक्त मतलब क्या? एंगेज करके रखना, बिजी करके रखना. युक्त आसित मत्परः. तो युक्त आसित, आसित मतलब क्या? कि आप एंगेज कर लेते हो. हरे कृष्णा. सो आप एंगेज कर लेते हो अपने सेंसेस को. युक्त आसित, आप पूरी तरह बिजी कर देते हो. ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उसको बिजी करते हैं, युक्त कर देते हैं. आसित मतलब सिचुएट हो जाते हैं, युक्त करके, बिजी करके शांत हो जाते हैं. मत परा, इन रिलेशनशिप विद मी. कृष्णा कह रहे मेरी, मेरे मेरे लिए अपने सेंसेस को एंगेज करके रखते हैं. जैसे यशोदा माई ने अपने सेंसेस को एंगेज किया था क्या कृष्णा के लिए? किया Yes, था, है ना? तो तानी सर्वाणी संयम, यह संयम भी तो रखा है यशोदा माई ने. यशोदा माई चाहती तो ज्यादा देर सो सकती थी. सुबह 3:30 बजे क्यों उठना यशोदा मैया ने? यशोदा मैया कभी कभी रात के 2:30 बजे उठती थी और मक्खन निकालती थी कि कृष्णा जल्दी उठेंगे, गाय चराने जाएंगे सुबह सुबह 5 बजे, तो कृष्णा जाने से पहले फ्रेश मक्खन होना चाहिए. तो रात के 2:30 बजे उठ के उन्होंने मक्खन निकालना और फ्रेश फ्रेश मक्खन कृष्णा को खाने के लिए दे देना, पैक करके देना, नाश्ते में देना. कृष्णा जल्दी चले जाते थे. सो तानी सर्वाणी संयम्य, जो भी लोग अपने सारे इंद्रियों को
अंडर कंट्रोल कर लेते हैं और फिर युक्त आसित कर लेते हैं, बिजी हो जाते हैं कृष्ण में मत पराहा। तो कृष्णा में अपने इंद्रियों को सेवा में लगा देते हैं। जैसे यशोदा मैया पूरा दिन बिजी रहती थी, कृष्णा चाहे गाय चराने गए हो फिर भी यशोदा माई पूरा दिन कृष्णा के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, लड्डू बनाएगी, रोटी बनाएगी, कुछ ना कुछ दिन भर उनके कपड़े सिलेगी, नए कपड़े बनवाएगी, नई ज्वेलरी बनवाएगी, कुछ ना कुछ तो कृष्णा के लिए चलता ही रहता था घर में। युक्ता आसित मत पराहा थी यशोदा मैया। अभी यही कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन इस तरीके से अपने सारे इंद्रियों पे संयम रखना है, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना है और अपने इंद्रिय किसकी सेवा में लगाने हैं, मेरी सेवा में लगाओ अर्जुन। बिजी कर दो अपने इंद्रियों को, हमारे हाथ में अपनी आंखों को सही तरीके से बिजी करना, हाथों को सही तरीके से बिजी करना हमारे हाथ में। ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे चलता नहीं है, ऑटोमेटिकली हाथ कभी ऐसे किसी भी चीज पे पड़ेगा नहीं। आपके हाथ, आपके दिमाग में आपके पास कंट्रोल होता है कि आपका हाथ कहाँ जाना चाहिए, आपके पाँव कहाँ जाने चाहिए। युक्त आसित, आप पूरी तरह कृष्णमयी करके बिजी कर दो। कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपने इंद्रियों को मेरी सेवा में बिजी करो। अभी कृष्ण अर्जुन के हाथ रेडी नहीं है लड़ाई करने के लिए, तो आंखें रेडी नहीं है बाण को सही दिशा में देखकर अटैक करने के लिए। तो अभी कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे तुम तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो अर्जुन, तुम तो भागने की बात कर रहे हो, तुम हिमालय में चले जाओगे, नॉर्थ की ओर चले जाओगे, तुमने तो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रख देना है। लेकिन फायदा क्या, तुम अभी हिमालय चले जाओगे, वहां से वापस आ जाओगे, तुम्हारे इंद्रियानी प्रमाथिनी बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे तुम पर और फुल फोर्स के साथ तुम्हें प्रसभम मनाहा, तुम्हारे मन पे पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। फिर तुम्हें वापस यहाँ पे लाएंगे, तुम्हारे इंद्रिय यहाँ से वापस तुम्हें भाग जाने का मन करेगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की तरह मत बनो जो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों की तरह बनो जो इंद्रियों को कंट्रोल तो करते ही है, सर्वाणी संयम्य, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और फिर युक्त कर देते हैं मेरी सेवा में। मत पराह, मत परह में मतलब क्या, मेरी सेवा में कुछ लोग अपनी इंद्रियों को बिजी कर देते हैं। गॉट इट? यस। युक्ता आसित मत परह का मतलब समझ में आ गया सबको? Yes, Mataji. और कौन है एग्जाम्पल युक्ता आसित मत परह वाला? अर्जुन हो गए, अर्जुन ने बाद में जाके युक्ता आसित मत परह हो गए। जो कृष्णा बोल रहे हैं उसको ऐसे करो, अपने सेंसेस को मुझ में एंगेज कर दो, मुझ में बिजी कर दो, युक्ता आसित मत परह। कई सारे मायावादी कहते हैं ना कि ये हरे कृष्णा वाले तो खुद ही लगे रहते हैं, पूरा दिन बिजी कर देते हैं अपना, इनको क्या जरूरत है अपना पूरा दिन बिजी करने की, ये शांत नहीं बैठ सकते। मायावादी कहते हैं कि ये शांत नहीं बैठ सकते, 2 घंटा एक जगह पर बैठकर इनको सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, ये उनको बोलना भी मुश्किल है। ये लोग एक जगह पे बैठने का आदी नहीं होते, ऐसे करके नीचा दिखाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि अगर हम एक जगह बैठेंगे तो हम सब हम सिर्फ ऐसे करेंगे, तानी सर्वानी संयम्य, इतना ही होगा हमसे, दूसरी लाइन फॉलो नहीं होगी भगवत गीता की, युक्ता आसित मत परा। हम तो पूरी भगवत गीता अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं, हम एक लाइन कहीं से भी उठा के फॉलो करेंगे क्या कभी? नहीं ना। No, Mataji. हाँ, पहली लाइन में बोला है कि ऐसे सारे लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। दूसरी लाइन में बोला है वो लोग जो युक्त आसित मत परा है, मतलब अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा के शांति से सिचुएट हो जाते, शांत हो जाते हैं। जैसे पंडित होते हैं, कृष्ण की पूजा करके शांत बैठे रहेंगे, प्रसादम आएगा खाएंगे, शांत बैठेंगे, फिर 1-2 घंटे बाद उठेंगे, वापस कृष्णा के लिए भोग बना देंगे। तो ऐसे उनका मन शांत हो जाता है, युक्त आसित मत परह करते हैं, बहुत ज्यादा एजिटेटेड नहीं रहते, उनका मन उनको तंग नहीं करता। वशे ही इंद्रिया, इंद्रियाणी, वशे ही मतलब क्या, वश में करना। पता है क्या वश में करने का मतलब क्या होता है? वश, वश का मतलब क्या होता है? वश का मतलब हिप्नोटाइज करना। क्या करना? हिप्नोटाइज। वश मतलब हिप्नोटाइज, कंट्रोल में लाना किसी को, वश में करना। हम सांप को वश में कर लेते हैं ना फाइनली, सांप को हिप्नोटाइज तो नहीं करते। वश, वश हाँ एक है, उसका भी एक मीनिंग है,
उसको वशीकरण कहा जाता है। लेकिन वश वश में करना मतलब किसी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लाना। इसने लिया था ना, शकुनी ने दुर्योधन को लिया था ना कंट्रोल में, बट दुर्योधन की भी इच्छा थी ना शकुनी की बात सुनने की। शकुनी ने धृतराष्ट्र को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था, बट धृतराष्ट्र की भी इच्छा थी कि मैं शकुनी की सुनूं, उसकी सुन के उसको बड़ा मजा आता था। राइट, अंडरस्टैंडिंग। वश में करने का मतलब क्या होता है, किसी को अपने अंडर कंट्रोल में लाना, लेकिन उसकी मर्जी से लाना। वशीकरण वो होता है जहां पे सामने वाले की मर्जी नहीं चलती, ये दो अलग है। ब्लैक मैजिक वो होता है जहाँ पे सामने वाले की इच्छा नहीं है आपके कंट्रोल में आना, लेकिन आप कंट्रोल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, पीछे ही कोई मैजिक करे जा रहे हो, भाई नहीं इंटरेस्ट है, हमें नहीं मरना जल्दी, हमें नहीं बोलना, जो गलत चीज है वो हमें नहीं बोलना, आपकी इच्छा है हमने झगड़ा करना चाहिए, हमें तो नहीं करना झगड़ा। लेकिन वशीकरण और इसमें क्या होता है, ब्लैक मैजिक में आपकी मर्जी के खिलाफ आपको कंट्रोल में लाया जाता है। और वश में करने का मतलब होता है सामने वाले की भी इच्छा होती है, आप दोनों उस इच्छा में शामिल होते हैं, तब जाके बात आगे बढ़ती है। जैसे किसने किया, धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को शकुनी ने किया था, उनकी मर्जी से ही किया था। बाद में लास्ट में जाके धृतराष्ट्र ने विदुर की बात मानी, तो तब वो विदुर के वश में चले गए थे, लेकिन अच्छा ही हुआ उनका। सो वश इन फुल सब्जुगेशन ही सर्टनली यस्य वन हुज इंद्रियानी सेंसेस। तो जो यस्येंद्रियानी, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों को वश में करना चाहिए या इंद्रियों को अपनी पावर देनी चाहिए कि करो जो करना है, ऐसे बोलना चाहिए? इंद्रियों को क्या करना चाहिए? माता जी, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो वशे ही, कृष्ण बोल रहे हैं वशे ही यस्येंद्रियाणी। कृष्ण ही बोल रहे हैं कि अपने सारे इंद्रियों को वश में करते हैं ऐसे लोग, जो लोग अपने सारे सर्वाणी संयम्य, सारे इंद्रियों को, तानी तानी मतलब सारे इंद्रिय, जितने भी इंद्रिय है सर्वाणी सारे इंद्रिय को जो कंट्रोल करते हैं, उनको वश में करते हैं। वशे ही इंद्रियाणी मतलब उनको वश में कर लेते हैं, पूरी तरह कंट्रोल में कर लेते हैं। युक्त आसित मत परा हो जाते हैं, कृष्णा में पूरी तरह अपना मन लगा देते हैं और कृष्णा की ही सेवा करते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हाँ, हिज कॉन्शियसनेस फिक्स हो जाती है। देखो प्रतिष्ठिता का मतलब क्या है, कई सारे लोग इस संस्कृत वर्ड को मायावादी भगवत गीता आप पढ़ोगे तो उनका कहना है कि इस वर्ड का मतलब है कि आपको रिस्पेक्ट मिलती है। जो भी इंसान अपने, तो मायावादी क्या करते हैं ना, ये पहली लाइन उठाते हैं, तानी सर्वाणी संयम्य वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। प्रतिष्ठिता मतलब मायावादियों की भगवत गीता में बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड करके लिखा गया है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी समझने में, लेकिन इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि ऐसे लगता था कि कुछ तो मिसिंग है पूरे श्लोक में। 3 ही लाइन की ट्रांसलेशन देते हैं और इस लाइन की ट्रांसलेशन देते ही नहीं है। इस लाइन को वो बोलते हैं परमात्मा मत परा, मतलब परमात्मा पे ध्यान लगाओ, आकाश पे ध्यान लगाओ। तो ये गलत है, ये मायावादियों की है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि उनका जो है ना, अभी वो क्या कहते हैं कि ऐसे करके भगवान के लाइट पे ध्यान लगाओ, युक्त हो जाओ, बिजी हो जाओ, पूरा पूरा दिन बैठो, लाइट पे ध्यान लगाओ, अपने इंद्रियों को वश में करो, और फिर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। तो काफी सारे लोग मायावाद ज्वाइन करने वाले ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर सटल लेवल पे रिस्पेक्ट की बहुत इच्छा होती है। अब देखो वैष्णवों में आधे से ज्यादा लोग ना बैकग्राउंड में ही काम करते हैं, उनको ऐसे फोरग्राउंड में आने की इच्छा नहीं होती। उनका ऐसा नहीं होता कि मेरे पास बहुत सारे लोग, हजारों हजारों लोग हैं। कुछ थोड़े ही लोग हैं जिनके पास वो आ जाती है, कृष्णा प्रभुपाद ब्लेस करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना वैष्णव संप्रदाय में, गौर किशोरदास बाबा जी, वंशीदास बाबा जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, इनकी तरह मिलेंगे आपको। जो बाबा जी है इनके अंदर वैराग्य है और ये खुद ही फोरग्राउंड पे आना नहीं चाहते। तो आपको जितने भी किचन में सेवा करने वाले मिलते हैं वो ऐसे हैं जो, जिनको प्रतिष्ठा ही नहीं चाहिए, चुपचाप उनको काम करके चले जाना है। फिर पीछे गार्डन ठीक कर रहे हैं, कोई तुलसी माता को ठीक कर रहा है, ये कर रहे हैं, पीछे के पीछे प्लम्बिंग की सेवा चल रही है, पीछे के पीछे पेंटिंग की सेवा चल रही है, किसी को सामने नहीं आना प्रीचिंग करने के लिए, उनको सब पीछे 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 रहना है। इनके अंदर बहुत ज्यादा वैराग्य होता है,
उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती प्रतिष्ठा की। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको प्रीचिंग करनी होती है सबको इच्छा होती है प्रतिष्ठा की, बट जो है प्रतिष्ठा जो एक फोरग्राउंड में आकर सटल लेवल पे मायावादियों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि हम वैष्णव तो फिर भी सत्वगुण को पार कर पाते हैं, मायावादी रजोगुण को पार नहीं कर पाते। मायावादी ब्रह्मा जी बने, 100 बार ब्रह्मा जी बने ना, तो भी वो रजोगुण को पार नहीं कर पाते। उनका रजोगुण उनको इतना तंग करता है कि 100 टाइम्स ब्रह्मा जी बनने के बाद उनको रुद्र बनने का मौका मिलता है, तो वो फिर रुद्र की पोजीशन ले लेते हैं। ऐसे 11 रुद्र जितने भी है, शिव जी के 11 रुद्र है एक्सपांशन से, तो मैनिफेस्टेशन है शिव जी के। वो 11 रुद्र बनते ही है, वही जीवात्मा बनता है जो 100 बार ब्रह्मा बना है। तो आप समझ सकते हो प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठा का मतलब मायावादियों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है भगवत गीता में। तो प्रभुपाद हमें करेक्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद हमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रतिष्ठिता का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है, आप एक जगह पे सिचुएट। आप मायावादी फिर ये करते हैं, क्या कहते हैं कि डिबेट करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ इस श्लोक पे डिबेट हुआ था, तो धर्म सभा थी और वहां पे यही श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सामने उन्होंने रखा था कि आप तो बड़े बोलते हो, कृष्णा ने आपके भगवत गीता बोली है, भगवत गीता बोली है, हम तो समझते हैं कि वो तो एक परमात्मा शक्ति है, वो माया का रूप लेकर आई थी बात करने के लिए, क्योंकि अर्जुन को नहीं तो सुनाई नहीं देता। आपको तो आप अगर ध्यान लगाओ तो आपको परमात्मा क्या बोल रहे हैं वो सुनाई देता है। अर्जुन तो बैठा नहीं था, ध्यान नहीं लगाया था, इसलिए माया के रूप में परमात्मा आए और उन्होंने अर्जुन को कानों में जानी चाहिए आवाज, इसलिए ये भगवत गीता में ऐसे कुछ मिसकंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट्स है। कहीं भी कृष्णा ने ऐसे बोला। सो अच्छा धर्म सभा होती है वहाँ पे। सो धर्म सभा में ये श्लोक आया था, जहाँ पे मायावादियों ने ये श्लोक बोला, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को कोट किया था और बोला था प्रतिष्ठा में फर्क है और प्रतिष्ठिता में फर्क है। प्रतिष्ठिता मतलब आप एक जगह पे फिक्स्ड रहकर बैठ जाते हो, जैसे आप इस कुर्सी पे बैठे हो, आप उठ नहीं रहे हो, ऐसे बोला था। जो धर्म सभा में प्रेजेंट कर रहे थे, चेयरमैन थे, उनको बोला देखो आप प्रतिष्ठिता की तरह एक जगह पे बैठे हो, आप उठ ही नहीं रहे हो, कितने सालों से आप उसी कुर्सी में बैठे हो। तो वहां पे दूसरा एक मायावादी था, कहते कि तुम प्रतिष्ठिता को और आसिता को एक कैसे समझते हो। आसिता का मतलब सिचुएटेड, शुड बी सिचुएटेड, एक जगह पे सिचुएट हो। प्रतिष्ठिता का मतलब तो रिस्पेक्ट होगा ना, तो मैंने कहा नहीं, रिस्पेक्ट कृष्णा की रिस्पेक्ट की बात करेंगे, कृष्णा ने तो ऑलरेडी अर्जुन को बोल दिया, कृष्णा ने तो ऑलरेडी अर्जुन को बोल दिया है कि देखो अर्जुन, तुम अगर भाग जाओगे तो लोग तुम पे चीची तू करेंगे, लोग तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे, ऐसे। तो वहां पे इज्जत का टॉपिक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अभी कृष्णा वापस आके रिस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे अर्जुन से, अर्जुन के साथ आत्मा की बातें चल रही है, उसको तो यही बताएंगे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता फिक्स्ड, योर कॉन्शियसनेस इज फिक्स्ड। प्रज्ञा मतलब क्या, प्राण, प्राण इच्छा होती, चेतना होती है, वो फिक्स हो जाती है एक जगह। कहाँ पे फिक्स हो गई है आपकी, ऐसे लोगों की जो इच्छाएं है, युक्त आसित मत पराह, मत पराह में फिक्स हो चुकी है। मत पराह कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णा के रूप में कोई आकाश या कोई भूत आके बोल रहा है क्या, हवा से आवाज आ रही है क्या, साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं ना मत पराह। तो ये मत पराह कृष्णा के बारे में है कि कृष्णा बोल रहे मेरे ऊपर कॉन्शियसनेस फिक्स हो जाती है, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मत पराह पर, मेरे ऊपर आकर आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह फिक्स हो जाता है। आ रहा है ये श्लोक समझ में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसित मत पराह। माता जी, हाँ जी, माता जी आपकी आवाज ठीक से क्लियर नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही क्या, अभी आ रही है, अभी आ, माता जी बैकग्राउंड में कुछ तो आवाज बार बार ये हो रही है। हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रही है। अभी तक नहीं आ रही थी इतनी देर से, पौने घंटे से। माता जी आ रही थी अभी कुछ 2-3 मिनट से, अभी थोड़ा सा मतलब आवाज आपका बीच बीच में क्रैक हो रहा है। क्रैक हो रही है आवाज, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ,
तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पराः वशे हि इंद्रियाणि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ऐसे लोग जो सारे इंद्रियों को इंद्रियों पे संयम पा लेते हैं और फिर अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और फिर युक्त आसित करते हैं, मतलब मत पराह पर कृष्णा पे अपनी सारे इंद्रियों को बिजी कर देते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, फिर जाकर वो फिक्स हो जाते हैं। जैसे यशोदा मैया ने अपने सारे इंद्रियों पे संयम कर लिया था। आंखों पे संयम किया, ज्यादा सोए नहीं हो। हाथों पे संयम किया, हाथों से इधर उधर की चीजें नहीं करी, मक्खन निकाला, हमेशा कृष्णा के बारे में सोचा कि कृष्णा को कैसे मैं सेवा दी। ऐसे करके उन्होंने हमेशा कृष्णा के बारे में सोचा। एंड देन युक्त आसित मत्परा होगी, कृष्णा में कृष्णा के कामों में बिजी होगी। फिर अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, उन्होंने पूरी तरह ही कंट्रोल कर लिया। अब उनके इंद्रिया उन पे हावी नहीं हो रहे थे। उनको कभी नहीं बोलते थे कि कोई बात नहीं, अभी कृष्णा मथुरा चले गए हैं, सो जाओ ज्यादा देर, मत निकालो मक्खन। इंद्रियों ने ऐसे बोलने की कोशिश करी होगी लेकिन वो हावी नहीं हो पाए, वश कर लिया था यशोदा मैया ने। और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हो गई यशोदा मैया, मतलब क्या, 100% कृष्णा पे ध्यान फिक्स हो गया। समझ में आया ये श्लोक? यशोदा मैया की जर्नी समझ में आ गई इससे? यस माता जी। आगे का परपोर्ट हम करते हैं, ठीक है। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वासुदेव की जय। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत।